तो सब इस बारे में मैंने आचार्य प्रशांत का एक वीडियो देखा था जी। उनका जो रैशनल था वो ये था, वो बोलते हैं कि दो डोमेन है अलग। एक तो जो भू है हमारी ये जो दुनिया है, और एक आपकी स्पिरिचुअल प्लेन है। और वो बोलते हैं कि ये दोनों प्लेन अलग हैं। आप दोनों को मिक्सअप मत करें। जो लॉज यहाँ पे वर्क करते हैं वो वहाँ पे नहीं वर्क करते हैं। What is your age, sir? Actually, I am now 76. 76. Very good. Very good. But I am quite fit and fine. थोड़ा योग के साथ मेरा पूरी जीवन भर कांटेक्ट तो रहा है, Right. लेकिन whatever I have learned by reading P.G. Sahar's book and listening to your videos, Right. it is very revealing. I find that is I have been able to understand the mechanics of the brain. Very good. And why it is not possible for me to meditate with section 1. So the path of evolution, I have a clear idea now. Excellent. आगे क्या होगा ये तो ईश्वर जानता है। Excellent. 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 मैंने आपका मैसेज पढ़ा। हाँ जी। मैं एक बार रिपीट कर दूं। आपने लिखा है, रिसेंटली आई सॉ द फिल्म कश्मीर फाइल्स। आई न्यू अबाउट द फैक्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आफ्टर सीइंग द फिल्म वॉज इमोशनली डिस्टर्ब्ड. My mind took me to many such genocides committed by a particular community. I recollected myself as I have been practicing Zen Yoga, but still it means E cells in the brain are active to a larger degree. Can the brain become insensitive to such issues? What is your advice so that we remain unmoved even for such highly emotive issues? हाँ सर, जैसे आपने गाइड किया ना, तो I do mind watching, interesting and all that. Right. So I realized that there are certain areas in my persona कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था क्या? एक्चुअली देखिए साहब, हम लोग पार्टीशन जब इंडिया का हुआ तब हम वहाँ से पाकिस्तान से आए थे। राइट राइट। आई वॉज वेरी स्मॉल बट माई पेरेंट्स वेंट थ्रू मेनी टर्मोइल। अच्छा। माई ग्रैंड पेरेंट्स, सो मेनी पीपल वर किल्ड एंड ऑल दैट। तो ये सब देखा। फिर जब मैं एक्चुअली आई वॉज सर्विंग मेनी ऑफ माई, आई वॉज इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। अच्छा। And I was posted in Ambala at that time. And many of these people from Jammu and Kashmir Valley, these Pandits, they came from there because they were those people belonging to the Department of Telecom. Right. So I had the first-hand experience listening to my people, those who were juniors to me. And when they came from there, they used to narrate horror stories. Right. So बस इतना फील नहीं हुआ था। Right. But now when I saw this Kashmir movies film, for instance, you see there was one of my SDOs posted in Kashmir. अच्छा। Srinagar. He was B.K. Ganju. अच्छा। तो उससे ही ये स्टार्ट होता है, जब उसकी फैमिली के साथ उन्होंने उसको वो एक अनाज के उसमें ड्रम में वो गंजू छुप गया था। ये आप उनको जानते हैं पर्सनली? मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। पर्सनली इन द सेंस कि मेरे डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। एंड ही वाज मच जूनियर टू मी, बट आई न्यू दैट certain person is there and he has gone through all this. His family has gone through all. बाप रे। So basically this is a factual statement जो भी कश्मीर फैमिली फाइल्स में दिखाया है। They have lot of truth in that. Right. I am a personal witness to it. ओहो। तो मैंने जब इसे देखा तो पहले तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ। नागपाल जी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं रिकॉर्ड करना चाहूँगा हमारी बातचीत।
जी जरूर। ठीक ठीक ठीक, या प्लीज कैरी ऑन। Now I was disturbed by whatever I saw. Then normally it would have carried me away. Right. But then I thought that I have learned through Zen Yoga and Bhagavad Gita also कि ये सब interplay of gunas है. Right. And so maybe my motive selves are still to be toned down, and I have to realize that whatever is perceived through the senses is not the reality. Right. It is not the real world. Right. So, I mean, it helps me to calm down. Right. Then I realized कि ठीक है, जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से होता है. Right. And maybe there are some deficiencies on part of the Hindu community that they have never risen up, they have never strengthened them. क्योंकि अगर आपका एक बगीचा बहुत सुंदर है तो उसके लिए आपको बाउंड्री वॉल बनाना भी तो आपका काम है ना। जी, बात सही बात है। अगर हम लोगों ने ओवर एजेस इतना सीखा नहीं है तो वी विल सफर। तो ऐसा सोच के मैंने रैशनलाइज किया। राइट राइट। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी एज के हैं, एंड आई फाइंड टॉकिंग टू देम देयर इज वर्चुअली लॉट ऑफ हेट्रेड इन देयर माइंड फॉर दोज पीपल कि जो भी एक्सप्रेशन करते हैं तो हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। राइट राइट राइट। तो मैंने सोचा कि आफ्टर ऑल अगर मैं अपने आप को इमोटिवली कैरी आउट करता हूँ, इसका कैरी अवे करता हूँ, तो मेरी जो सोल की जर्नी है उसी में नुकसान होता है, उसी में हैम्पर होती है। राइट 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 राइट। तो आई डिसाइडेड कि ठीक है, आई रीजन टू माई सेल्फ दैट इट इज ऑल ईश्वर की इच्छा है और ये दुनिया ऐसी है, तो मेरे को अब ये सीखना है कि मुझे ऐसी दुनिया में वापस नहीं आना। Right, so right. I have to work, and this is all because I learned from Zen Yoga. Right, right. Now अब हम इस स्टेज पे हैं कि we are in the final stages of life. So basically I have to work out so that my resultant intensity, resultant pattern is in order. Very good, very good. Before I leave this body. Right. तो मैंने सोचा कि मैं इन चीज़ों को अब अपने दिमाग से हावी नहीं होने दूंगा। Very good. Let it be there. देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग जब कोई प्रैक्टिस करते हैं और मुझे यहाँ पर कृष्ण को कोट करना है भगवत गीता को कि अर्जुन तुम कर्म के फल के ऊपर ध्यान नहीं दो, केवल कर्म करो। तो हम लोग को पता नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म प्रोसेस है। फल की इच्छा बहुत ही सूक्ष्म प्रोसेस है। अब आपने एक मूवी देखी और उस मूवी को देखने के बाद आप डिस्टर्ब्ड हो गए, दबा हुआ पुराना हेट्रेड निकल आया। इनफैक्ट मुझे भी वो मूवी किसी ने भेजा था, लिंक भेजा था, तो मैंने खैर मैं तो मूवीज़ देखता भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत 2-3 सीन देखा था मैंने। उसके बाद फिर मैंने हटा दिया, ज़रूरत नहीं पड़ी देखने की। फिर से मुझे किसी ने भेजा, तो मैंने मूवी तो नहीं देखी, बट उसका एक छोटा सा समरी किसी ने बनाया था, 10-15 ट्रेलर नहीं, एक तरह से समरी। मुझे उस समरी को 15 मिनट में देख करके पता चल गया पूरी फिल्म क्या स्टोरी है और कितना वायलेंस हुआ था, उसका आइडिया पड़ गया था। उसके बाद फिर मैंने उसको देखा नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी भी इंसिडेंस की जब फिल्म देखते हैं तो हमारा ब्रेन उस घटना को परसीव करता है और इंटेंस तरीके से। इसको ऐसे समझिए कि नेचर में ना जो भी फल फ्रूट होते हैं वो नेचुरल होते हैं, उनमें मिठास न बहुत ज़्यादा होती है न कम होती है। लेकिन हम लोग जो मिठाई बनाते हैं या सब्ज़ी बनाते हैं या जो भी चीज़ें बनाते हैं उसमें नमक या चीनी की मात्रा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे स्वाद के हिसाब से हम बढ़ा या कम कर देते हैं। तो जब एक फ़िल्म बनती है तो उसमें ढेर सारी चीज़ें डाली जाती है। अब हम लोग ये तो देखते हैं कि किसी कम्युनिटी के लोगों ने हिंसा किया है, लेकिन अभी ये सवाल नहीं उठता हमारे मन में कि हिंसा का जड़ क्या है। और वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जब एक फ़िल्म देखते हैं तो फिल्म का नैरेटिव ऐसा है कि वो आदमी गलत है।
मुझे याद है बचपन में मुझे मेरी मम्मी ने मारा, मेरे ताऊजी ने मारा, और आज बड़े होकर के मैं देखता हूँ तो बहुत मारा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो उनकी उस समय की नासमझी थी, उनको उससे बेहतर तरीका नहीं पता था। लेकिन जब हम किसी कम्युनिटी को देखते हैं तो वो आक्रोश बढ़ जाता है, और ख़ास तौर से जब ब्रुटैलिटी को देखते हैं, जब किसी ने खून किया है। अब देखिए, हम लोग अपने मन में ना अपने पास्ट को तो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब कोई केस बनता है, कोर्ट कचहरी का केस बनता है, तो हम पास्ट को ख़त्म नहीं करना चाहते। अभी जर्मनी में हिटलर थे, हिटलर ने दुनिया बर्बाद किया, और हिटलर ने अकेले तो किया नहीं, बहुत से लोगों ने उनके साथ मिलकर के किया, बट बदनामी सबसे ज़्यादा हिटलर की होती है। इस समय पुतिन कर रहे हैं काम, और अभी तो इस समय ऐसा हो गया है कन्फ्यूजन कि पता ही नहीं चल रहा है सही कौन है, अमेरिका सही है कि पुतिन सही है या रशिया सही है। लेकिन हम जब भी किसी भी घटना को देखते हैं और सुनते हैं तो हम उसकी रियलिटी को नहीं जानते। अच्छा, जब रियलिटी को नहीं जानते तो हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि कुछ हो रहा है जो गलत हो रहा है, या कुछ हुआ जो गलत हुआ, और अगर हम उसको ध्यान से परसीव कर सकें, उसको कॉन्टेम्पलेट कर सकें, तो हमको ये समझ में आएगा जैसे इस दुनिया में बाकी चीज़ें होती हैं, डेथ होती है, डिजीज़ होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, सुनामी होता है, ऐसे ही मास मर्डर करते हैं लोग। अब इसमें थोड़ा सा ये समझने की बात है कि हम लोगों को लगता है कि ह्यूमंस, आदमी के पास फ्री चॉइस है। एक आदमी चाहे तो किसी को ना मारे और चाहे तो मार दे, लेकिन हमारी मेंटल कंडीशन तकरीबन हमारी बॉडी की कंडीशन की तरह ही होती है, वो ढेर सारी चीज़ों से बनती है। अगर एक आदमी स्वस्थ है तो उसके शरीर में स्वास्थ्य के सेल्स ज़्यादा हैं और बीमारी के सेल्स बैलेंस की मात्रा में कम है। जैसे एक आदमी अगर फाइनेंशियली लोन कम है और बैंक बैलेंस ज़्यादा है तो वो अमीर आदमी है, और वहीं पर अगर लोन ज़्यादा है, चाहे 100 करोड़ का लोन हो और उसका बैंक बैलेंस 10 करोड़ है, तो वो बहुत गरीब है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी ऐसा होता है कि हमारा एक तरह से बैलेंस चलता रहता है, प्लस का और माइनस का। माइनस हो गया तो हम बीमार हैं, प्लस हो गया तो हम स्वस्थ हैं। और जो लोग भी इस तरह की घटनाएं करते हैं, एक इंडिविजुअल या ग्रुप्स, उन सब का मेंटल इम्बैलेंस होता है, और जब एक साथ वो मिल जाते हैं, चाहे किसी परिस्थिति में या किसी ऐप से या किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से, तो वो उसके पीछे और भी बहुत से कारण होते हैं। कृष्ण खुद चाहते थे कि महाभारत ना हो, और फिर भी महाभारत हुई, और अब तो हम लोग मानते भी हैं कि कृष्ण भगवान थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भगवान भी अवॉइड नहीं कर सके इस फिज़िकल वर्ल्ड में लड़ाई मारपीट, क्योंकि ये दुनिया का नेचर है, ये ब्रह्मांड का नेचर है, इस फिज़िकल वर्ल्ड का नेचर ही है, और ये कोई सही या गलत नहीं है। हम लोग खुद लकड़ी काटते हैं और उसके फर्नीचर बनाते हैं, फिर फर्नीचर टूट जाता है तो उसको हम फेंक देते हैं, वो मिट्टी का हिस्सा बन जाता है, और फिर से उसी में से पेड़ बनता है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बनना और बिगड़ना, जैसे हम जिनोगा में कहते हैं ना, डेथ इज़ द लॉ ऑफ बीइंग। जो मौत है वो बीइंग का नियम है। जब किसी की मृत्यु आती है और तब उसकी डिवाइन फ्रैगमेंट डिसाइड कर लेती है कि ख़त्म होना है। तो जब भी हम इस तरह की घटना, इनफैक्ट छोटी या बड़ी घटना देखते हैं, कोई भी घटना देखते हैं, घर में एक बच्चे को मार पड़ती है, मर्डर नहीं होता लेकिन मार पड़ती है, तो भी हमको ये देख करके थोड़ा गहराई से देखना चाहिए। गहराई से मेरा मतलब है कि एक तरफ हमारा इमोशन तो चीख चीख के बोलेगा कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे हम लोग जिनोगा में बोलते हैं ना कि एक है फैक्ट। फैक्ट मतलब जो हुआ। अब किसी को कैंसर हुआ, मन तो बोलता है नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन हुआ। अब ये फैक्ट तो कृष्णमूर्ति को और रमण को भी हुआ, बुद्ध को भी हुआ, रामकृष्ण को हुआ, क्योंकि ये नेचर है। एक बिल्डिंग अगर 100 साल तक रहेगी तो धीरे धीरे उसका सीमेंट टूटेगा।
डॉक्टर साहब, इस बारे में मैंने आचार्य प्रशांत का एक वीडियो देखा था जी। उनका जो रैशनल था वो ये था, वो बोलते हैं कि दो डोमेन है अलग। एक तो जो भूख है हमारी ये जो दुनिया है, और एक आपकी स्पिरिचुअल प्लेन है, और वो बोलते हैं कि ये दोनों प्लेन अलग हैं। आप दोनों को मिक्सअप मत करें। जो लॉज यहाँ पे वर्क करते हैं वो वहाँ पे नहीं वर्क करते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि इस दुनिया में पावर इज द डोमिनेटिंग थिंग। अगर आप पावर नहीं है आपके पास, तो आप भगवान राम ने रावण पे विजय पाई, वो एक इंस्टेंस हुआ। लेकिन उसके बाद में सारे ही जुल्म और पावर की विजय हुई। लेकिन तो अहिंसा आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए चाहिए, आप अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, इंडिविजुअल जर्नी के लिए चाहिए। राइट। तो अगर आप इस संसार में जीना चाहते हो तो आपको होश से जीना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ये उनका एक पर्सपेक्टिव था। जी जी, तो मेरे ख्याल में ठीक भी है। इसमें थोड़ा सा मुझे ऐड करना है, ज़रा सा मुझे ऐड करना है कि मुझे इसके संदर्भ में अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची ने और भी कहा था आचार्य प्रशांत का ये थॉट प्रोसेस के बारे में। तो इसमें थोड़ा सा मुझे एडिट करना है, ट्वीक करना है। हम लोग क्या देखते हैं कि देखिए, फिजिकल वर्ल्ड में जैसे हमको अपने शरीर को बचाना है बीमारियों से, तो हम ये नहीं कह सकते कि बीमारी को सर्वाइव करना है तो हम अहिंसावादी हो जाएं। हमको अपने शरीर को बचाना है, और आपने एकदम सही कहा, जितना शरीर मजबूत रहेगा उतना ही बीमारियों के अगेंस्ट खड़ा हो पाएगा। लेकिन जब हम पावर की बात करते हैं तो धीरे धीरे हम, और दूसरी बात ये, स्पिरिचुअल लॉज इस फिजिकल वर्ल्ड से एकदम अलग है। तब उस कंडीशन में ये हो जाता है कि एक आदमी को चूज़ करना है। मान लीजिए मुझे चूज़ करना है, मेरे सामने एक आदमी है जो मुझे मार सकता है या मेरे बच्चे को मार सकता है। अच्छा, ऐसा हुआ अभी कुछ साल पहले एक गुंडे ने मुझे पीटने की कोशिश की थी दिल्ली गाज़ियाबाद में, करीब यहाँ से 15 साल पहले दिल्ली में। तो वो 3-4 लड़के थे, यंग लड़के थे, और कुछ पैसा वैसा मांगने आए थे हमारे स्कूल में हफ्ता। तो मैंने उनको डांट के भगा दिया, और फिर उन्होंने मुझे रात को, मैं जब घर जा रहा था तो मुझे रोका और पकड़ के ले गए, काफ़ी मारा पीटा। इनफैक्ट काफ़ी नहीं मार पाए, क्योंकि मैं देख गया कि ये लोग थोड़ा नशे में हैं। तो जब एक घुसा मारा तो मैं नीचे गिर गया, ऐसे ही बेहोश होकर दिखाया कि मैं मर गया। तो किसी ने कहा अरे यार मर गया, किसी ने कहा नहीं, तो फिर वो भाग गए बच्चे। फिर मैं उठा, अपने घर गया, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, जाने दो। मैंने अपने दोस्तों से मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो दोस्त तो बस बड़े नाराज़ हो गए कि अब चलो हम उसको पीटेंगे, मारेंगे। तो मैंने समझाया कि नहीं, जाने दो। बट अगले दिन क्या हुआ, वो आदमी फिर से हमारे स्कूल में आ गया, और उसने फिर लड़ाई वड़ाई करने की कोशिश की कि अब समझ में आया तुम लोगों को, और तुम लोग कोई पीटेंगे अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो। उसके बाद हम लोगों को समझ में आया कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग तो स्कूल बंद करके जाना पड़ेगा यहाँ। तो मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने थाने में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अवॉइड किया पुलिस वालों ने कि अरे छोड़िए डॉक्टर साहब, इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर मैं और परेशान, मैंने कहा यार ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे। फिर हमारे एक अंकल हैं, वो IAS ऑफिसर थे उस समय, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो उनको मैंने बताया फ़ोन करके, तो उन्होंने कहीं किसी को फ़ोन किया, फिर नोएडा के SP ने फ़ोन किया, और ये पुलिस वाला मेरे घर पे आया और उसने कहा अरे डॉक्टर साहब आप तो ऊपर चले गए। तो मैंने पावर का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर वो पकड़ा गया था, उसको जेल वेल भी हुई थी, और उसके बाद आया, उसने माफ़ी भी मांगी। उसके दोनों जो गुंडे थे वो भी मेरे पास आए, उन्होंने भी माफ़ी मांगा और कहा कि आप सर हमको तो नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि हमको FIR हो गई हमारे खिलाफ, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। तो खैर इस तरह से मामला फिर रफा दफा हो गया। ये बात 15 साल पुरानी बात है। तो पावर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कहीं वायलेंस और नॉन वायलेंस की पूरी स्टडी जो होती है वो माइंड के अंदर होती है। और फिजिकल वर्ल्ड में जब आप किसी सिचुएशन को फेस करते हैं तो वो तुरंत का परसेप्शन और रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर उस समय मैं उन तीनों गुंडों से फाइट करने की कोशिश करता तो मैं ब्रूस ली था नहीं। मैंने अपने आप को बचाया अपनी समझ बूझ से। लेकिन उसके बाद भाई पुलिस स्टेशन में और जो भी मेरे पास रिसोर्सेज थे उसका इस्तेमाल किया। तो जब हम ये कहते हैं ना कि पावर इकट्ठा करो या पावर डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो वो एक फैक्ट है,
बट जैसे ही कोई कहेगा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फिजिकल वर्ल्ड में, तो हम ये भूल जाते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड का पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है। लर्निंग स्कूल, यहाँ पर हमको ये देखना है कि क्या मैं, जब किसी आदमी ने मुझे मारा, मुझे नुकसान पहुँचाया, तो क्या मैं उसको नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि वो मुझे नुकसान न पहुँचाए। लेकिन ये थोड़ा सा हम देख नहीं पाते हैं कि अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुँचाया तो मैं भी उसको नुकसान पहुँचाऊँगा, तभी बराबरी होगी। ये एक विशेष सर्कल है और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आदमी फॉलो करे क्योंकि मैं कह रहा हूँ। ये जब सिचुएशन में आदमी फंसता है तब ही डिसाइड कर सकता है, उसकी बुद्धि, उसकी विवेक, उसके आई सेंटर से, उसके ई सेंटर से, उसके एस सेंटर से, उसके पैसे से, उसके परिवार से, वगैरह वगैरह। ये उस मोमेंट का सच है। आज यूक्रेन अपने आप को बचा रहा है और हो सकता है अगर हमारे पास रिसोर्सेज अगर हम हो तो हम सरेंडर कर दें और बोले भाई हम नहीं मरना चाहते, ले लो, और लोग जिंदा रहें। तो कभी भी हमको ये दूसरों की बातों को सुन करके सही या गलत डिसाइड नहीं करना चाहिए। हमको खाली ये कहना चाहिए। हाँ, मैंने ऐसा, मेरे मन में जो एक अंडरस्टैंडिंग आई है वो ये आई है कि शक्ति जरूरी है, लेकिन शक्ति उन हाथों में शुभ होती है जो शांत होते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, ये भी सच्ची घटना है। ज़ेनोगा एडवांस में अभी हमने रिसेंटली कवर किया था। रमन महर्षि की लाइफ में ऐसा हुआ, एक बार वो सो रहे थे रमन आश्रम में, वहाँ साउथ में, और कुछ चोर घुस आए, डंडा वंडा लेकर आए। आपने देखा था वीडियो? याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो वो लोग चोर आए और वहाँ पर सब नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा आश्रम नहीं था उस समय, छोटा सा आश्रम था, एक कमरा था, एक छोटी सी अलमारी थी, उसमें शायद 2, 4, 5, 10 रुपए थे। तो उनको लगा बहुत बहुत कुछ है इनके पास। तो रमन ने कहा कि देखो हमारे पास ये थोड़ा बहुत सामान जो भी है, ये चाबी है, तुम ले जाओ और नुकसान मत करो कुछ। लेकिन वो उधर एक कुत्ता था, वो भौंक रहा था, तो उसको भी मारने की कोशिश कर रहे थे। और उनके जो शिष्य थे, तो उसमें से एक शिष्य को इतना गुस्सा आया, उसने एक डंडा उठाया और मारने जा रहा था। तो मुझे रमन की बात इतनी अच्छी लगी। अब मैं फिर से ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है गलत है। वो बोलते हैं देखो बेटा, अभी तुम इनको मत करो कुछ, उनको जो कर रहे हैं करने दो, क्योंकि ये चोर हैं, इनका कर्तव्य चोरी है, और हम साधु हैं। और अगर मान लीजिए तुम्हारे और उनके बीच में लड़ाई होती है और वो मर जाता है, तो ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे ऊपर कलंक आ जाएगा कि ये साधु तो मर्डरर है। और फिर ऐसा हुआ कि चोरों ने कहा कि तुम लोग इस कमरे से बाहर निकलो। तो एक एक करके सब बाहर निकले, और जब रमन बाहर निकल रहे थे तो एक चोर ने उनको मारा एक पैर में, और फिर उन्होंने कहा ठीक है, एक पैर में मार लिया तो दूसरे में भी मार लो, और फिर वो बाहर निकल गए। तो अब वो उस मोमेंट की सच्चाई थी उनको या तो गुस्सा नहीं आया, वो शांत रहे, या उनको अटैचमेंट नहीं था, या जो कुछ भी था, वो उस मोमेंट की सच्चाई थी। लेकिन कोई भी आदमी, मैंने कहा ना, एक आदमी अपनी आई सेंटर होता है, ई सेंटर होता है और एस सेंटर होता है। एक आदमी को अपने बच्चे को या वाइफ को देख करके इतना गुस्सा आ जाता है कि वो उसी को मारना शुरू कर देता है, और एक रमन जैसा आदमी होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड दूसरा डायमेंशन है, वहाँ के लॉज यहाँ अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन हम तो यहाँ हैं ना, और हमारा माइंड, जिसको भी आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, वो यही है। अगर हमको अपने माइंड की और अपने अंदर की अच्छाई को जांचना है, चेक करना है, तो फिर मुझे यही पता चलेगा कि मैं कितना क्रोधी हो सकता हूँ, मेरे मन में कितने वायलेंट थॉट आ सकते हैं, मैं कितना नुकसान पहुँचा सकता हूँ किसी को। क्योंकि जब हम पावर की बात करते हैं, हिटलर की और पुतिन की बात करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि उन्होंने अकेले वो बर्बादी नहीं की। उनके साथ हम जैसे बहुत से लोग थे जो कंफ्यूज थे, जिनको लग रहा था कि पावर के साथ हो लो। तो अब हमारे घर में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो हम लोग किसका साथ देते हैं? मासूम का साथ देते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, या जो टायरेंट है उसके साथ खड़े होकर के बोलते हैं पीटो उसको। तो इसलिए महाभारत में भी तो दुर्योधन का साथ दिया ही था लोगों ने, बहुत से लोगों ने दिया था। तो और जब पता है, और जब मैं तो अक्सर ही, अभी रिसेंटली मैं डिस्कस कर रहा था किसी से, तो मैं सोच रहा था कि ये कितनी ताज्जुब की बात है, भीष्म पितामह देखने में और सुनने में इतने समझदार लगते हैं,
और वो अपनी तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, अपने परिवार से इतना अटैचमेंट था कि उनको महाभारत का रिजल्ट देख करके ही मरना था। अरे भाई, तुम्हें मर सकते हो, तुम्हारे पास इच्छा मृत्यु का वरदान है और तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम भगवान कृष्ण को भगवान मानते हो, तो इच्छा मृत्यु से अपने आप को मुक्त कर लेते और अगला जन्म जो होता है उसमें चले जाते। लेकिन हम लोग अपनी फिजिकल बॉडी और अपने फिजिकल आसपास की चीज़ों से इतना ज़्यादा आइडेंटिफाइड होते हैं। वो पिछले जन्म में वसु थे, 8 वसुओं में से एक वसु थे, वो बहुत ही एडवांस्ड सोल माने जाते हैं वसु। लेकिन वो सब भूल करके उनको ये समझ में आया कि मैं भीष्म पितामह हूँ, एक फिजिकल बॉडी हूँ। जब इस दुनिया में नागपाल जी, जब भी इस दुनिया में हमको खुद सरेंडर करने का मौका आए, लाइफ को, किसी इंसान को नहीं, लाइफ को, और उस मोमेंट पे जैसे आपने कहा कि आपने इस फिल्म को देखा और आप बहुत परेशान हो गए, वो परेशानी एक आपके लिए बहुत बड़ा खुलासा है अपने माइंड के बारे में कि अच्छा ठीक है, मेरे ब्रेन में अभी भी आई सेंटर में डिस्टर्बेंसेस होने की पॉसिबिलिटी है। ये ऐसे ही है जैसे कि आदमी 2, 4, 5 साल में जाता है कैंसर का इलाज कराने के बाद रिव्यू करने के लिए कि क्या कैंसर के कुछ कण बचे हैं, और आपने एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया, पता चला हाँ अभी भी कुछ कण बचे हैं, तो और ट्रीटमेंट की जरूरत। तो ट्रीटमेंट मतलब बेसिकली ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्या है, हम जब अपने ऊपर काम करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे हील हो जाता है। और जैसे कृष्ण जब कहते हैं ना अर्जुन से, कर्म की फल की चिंता ना करो, और उसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं बी अवेयर, पैसिवली अवेयर। तो हम अपने अंदर की इस तरह की चीज़ों को देख करके हमको ये पता चलना चाहिए, अच्छा ठीक है वायलेंस है और उसके अगेंस्ट में मेरे मन में डिस्टर्बेंस भी है, बस। और कुछ नहीं। ये ऐसे समझिए जैसे आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपको दिखाई दे गया, अच्छा ठीक है अभी पीछे वाला स्टेशन है, अभी आगे वाला स्टेशन आना बाकी है, मैं रास्ते पे हूँ, मैं यात्रा में हूँ। और अल्टीमेटली हमारा रिस्पॉन्स होना कैसा चाहिए? होना तो ये चाहिए कि चाहे हमारी अभी की मेमोरी हो, चाहे 20 साल मेमोरी पुरानी मेमोरी हो, चाहे हमारी इंडिविजुअल मेमोरी हो, चाहे कलेक्टिव मेमोरी हो, मतलब अपना अकेले की मेमोरी हो, चाहे पूरे सोसाइटी की मेमोरी हो, मेमोरी हैज़ टू बी डिस्कार्डेड। हम ये नहीं कह सकते कि 50 साल पहले इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी तो अब उसका खामियाजा कोई ना कोई भरे, उसका इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ होता है प्यार से, सरेंडर से, कामनेस से। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से, क्योंकि यहाँ पर ताकत भी बहुत ज़रूरी है और यहीं पर आपको शांति भी यहीं चाहिए। और जब इनफैक्ट जब एक शांत आदमी के पास ताकत आती है नागपाल जी, तो वो शुभ होता है। वो शुभ तो होता है, लेकिन एक उससे बड़ी बात बताऊं, पता नहीं चलता कि उसके पास ताकत है। हाँ। मतलब एक शांत आदमी के पास, रमण के पास इतनी शक्तियां थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चला। उन्होंने अपने आप मॉलिक्यूलर बॉडी में लोगों को इतनी बार दिखाई दिए, इतनी चमत्कारी शक्तियां थी उनके पास। और कितने ऋषि महर्षि हैं, वो चाहें तो सेकंड्स में पता नहीं क्या कर दे। तो आपको ये ध्यान रखना, मुझे लगता है जब भी कोई गुरु आदमी ऐसा बात करता है फिजिकल वर्ल्ड में ताकत चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस आदमी को ताकत चाहिए। उसको अपनी सेना बनानी है, अपनी फॉलोअरशिप बनानी है, और वो चाहता है कि भाई तुम गिव अप मत करो, फाइट करो, लड़ो। एक तरह का वो चाहिए ना, एक ग्रुप को चलाने के लिए एक जोश चाहिए, क्योंकि आपको फिर पर्पस कैसे देंगे, कैसे आप दिखाएंगे कि हम एक हैं, किसी ग्रुप का पार्ट है, किसी गुरुजी के शिष्य हैं। यू नीड दैट काइंड ऑफ इमोशंस, बिकॉज ताकत का तो मतलब ही नहीं है भाई, 1-2 इंसान है। और जैसे मैंने कहा ना, जब किसी इंसान को आप देखते हैं और वो आदमी, आप उसको समझा सकते हैं, पकड़ के दबा सकते हैं, तो आप दबा देते हैं, गलत होने से पहले रोक देते हैं। उसमें जो भी आपके पास है उसमें ताकत कहाँ आ गई? जब कोई आदमी ताकत की बात कर रहा है, इसका मतलब वो कॉन्शियसली ताकत इकट्ठा करना चाहता है या करवाना चाहता है। आखिर यही तो पॉलिटिकल पावर्स बोलते हैं कि हमको ताकत चाहिए, हम हिंदू एकजुट हो जाएं, या हम एक देश एकजुट हो जाएं, क्योंकि हमको वो सब रिसोर्सेज इकट्ठा करके कुछ करना है। और जैसे आपने कहा, अपने को बचाने के लिए ताकत नहीं चाहिए होती है, ज्ञान चाहिए होता है, और ज्ञान की वजह से एक बाई प्रोडक्ट की तरह से ताकत आती है। ताकत हैज़ टू ऑलवेज कम एज अ बाई प्रोडक्ट।
हाँ, नहीं तो फिर वो हिटलर वगैरह लोग हो जाएंगे, वो उस टाइप के जिनके पास पावर आएगी और वो विनाश करेंगे। बेसिकली मुझे लगता है हिटलर के समय पे या आज भी पुतिन के समय पे या जहाँ कहीं कभी कमी है वो ताकत की कमी नहीं है। ताकत तो अमेरिका के पास इतना ज़्यादा है, चाइना के पास इतना ज़्यादा है, ताकत की तो भरमार है दुनिया में। और उसी का तो डर है कि न्यूक्लियर पावर है लोगों के पास। प्रॉब्लम ये है कि समझ की कमी है, इंटेलिजेंस की कमी है। विनाश करने के लिए ताकत है, लेकिन मतलब भला करने के लिए या विकास करने के लिए ताकत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब समझ की गहराई आएगी तो ताकत अपनी सही जगह पर बैठ जाएगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि समझ जागनी चाहिए, तभी ताकत आए तो अच्छा है। मैं ये चाहता हूँ नागपाल जी, हमारी बातचीत को ना मैं पब्लिक वीडियो में शेयर कर दूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। नहीं सर, अगर आप इस लायक समझते हैं तो जरूर करिए। नहीं, बहुत अच्छी डिस्कशन रही है मेरी और आपकी, और इस तरह से मैं चाहूँगा फ्यूचर में हम लोग दोबारा करें, अगर कोई टॉपिक हो, क्वेश्चन हो। इनफैक्ट मैं गुड़गांव आया था पिछले महीने, मैं फिर से आऊँगा तो आपसे मुलाकात भी करूँगा। नहीं साहब, अभी मैं गुड़गांव में नहीं हूँ, एक्चुअली मैं बैंगलोर में हूँ, मेरे बच्चे बैंगलोर में सेटल्ड हैं। अच्छा, चलिए फिर बैंगलोर आएंगे तो वहाँ मिलते हैं। बैंगलोर आइए तो मोस्ट वेलकम। हमें बहुत खुशी होगी। आप एड्रेस भेजिएगा, हम लोग आएंगे बैंगलोर, आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। हमारे बच्चों ने बोला कि अब आप इस स्टेज में अकेले मत रहिए दोनों। राइट। दोनों यहाँ आ गए। चलिए, वेरी गुड सर। चलिए ठीक है, फिर दोबारा बात करें। हाँ जी जरूर। अच्छा, बहुत खुशी होगी। मुझे भी बहुत खुशी होगी सर। अच्छा, नमस्ते सर।